ठीक है, we'll start with this question. The question says that L एक language है जिसके अंदर L only contains strings of the form A power P. ठीक है, so it's just gonna be A, it's gonna be A होगी या A होगी या A some version number of A's. ठीक है ना, लेकिन the number of A's will always be prime. ठीक है, so think of all the primes. The first prime is 1, then 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 तो प्राइम नहीं है, then 11 है. So L contains any string A power P, यानी A such that the number of A's is a prime number. अच्छा, ये प्रूफ सर ने कराई तो नहीं ना क्लास में, ताकि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ना आप लोगों का? ऐसा तो नहीं आप लोगों ने पहले की भी, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ? बस सही, ठीक है, ओके. So does anyone want to guess how it go about this? How are you going to use the pumping lemma to show that this language is not regular? So the pumping lemma का आपको पता है ना, the whole game is guessing the initial string. कि initial string आपने क्या बनाई कि उसको pump up करेंगे तो उसके साथ आप दिखा सकोगे कि oh, I can find a string that when you pump it up it's going to be out of the language. That's the whole game, guessing the initial string and using it to get up a pumped up version that is not the language. Does anyone want to guess what our starting string will be? ठीक है, I'll just get straight to it. ठीक है, so now first let's lay down the foundation of the pumping lemma itself. The pumping lemma states that if L is an infinite language and it's a regular language, then it will have to satisfy the pumping lemma. अब इसके लिए आपको एक important चीज बतानी है कि passing the pumping lemma is just one prerequisite for being sorry, एक second. So passing the pumping lemma is just one prerequisite for being a regular language. ठीक है, एक चीज बताएं, if I pass the pumping lemma, does that mean I am regular or non-regular? ओके, एक स्टूडेंट ने कहा if you choose the y is the length. ओके, आप लोगों ने कहा अनडिसाइडेबल तो साधारण थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. One person said regular. Okay, so this is exactly what I wanted to address. Think of the pumping lemma. अच्छा, फर्स्ट कीजिए आप ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं. अगर आप में से किसी ने ड्राइविंग टेस्ट दिया तो आपको पता है कि उसका शुरू का पार्ट होता है कोई रिटन या कंप्यूटराइज पार्ट. ठीक है ना, उसके लिए आपको लेट्स से वो वैसे तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन फर्ज कर लीजिए वो सिर्फ इंग्लिश में होता था. Now you know that to pass a driving test you have to first pass the computerized test. ठीक है ना, and the computerized test is in English. उसी के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दोगे. एक बंदा है उसको इंग्लिश ही नहीं आती, अगर उसको इंग्लिश ही नहीं आती तो वो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट तो कभी देगा ही नहीं. So you know that if someone doesn't know English, he will never have passed the driver's test, so he does not have a driver's license. ठीक है, so the driver's license in this case is being regular. In this analogy, the driver's license is being regular. The pumping lemma is just the first part of being regular. If you have to be a regular language, you have to pass the pumping lemma. But just because you pass the pumping lemma doesn't mean you're a regular language. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई बंदा है और उसको वो क्या यार मुझे अंग्रेजी आती है, तो आप क्या कहोगे उसके पास ड्राइवर लाइसेंस है? नहीं ना. जस्ट बिकॉज ही पास्ड वन ऑफ द प्रीरेक्विजिट्स डजंट मीन ही इज ऑटोमेटिकली अ रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है ना, सो द पंपिंग लेमा. लेकिन अगर कोई बंदा आया और आपके पास आपको बताए कि यार मुझे अंग्रेजी ही नहीं आती, तो आप उसी वक्त कह दोगे यार देयर इज नो वे दिस पर्सन हैज द ड्राइवर्स लाइसेंस. एंड दैट्स व्हाट द पंपिंग लेमा इज यूज्ड फॉर. यू टेक अ लैंग्वेज, यू ट्राई टू सी यार इज ही एटलीस्ट पासिंग द बेयर मिनिमम. अगर वो पंपिंग लेमा ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर तो वो रेगुलर है ही नहीं. अगर उसने सेटिस्फाई कर लिया फिर हो सकता है वो शायद रेगुलर हो, शायद फिर भी नॉन रेगुलर हो, लेकिन हो सकता है कि वो रेगुलर है. लेकिन इफ यू फेल द पंपिंग लेमा आप तो उसी वक्त निकल गए. ठीक है, सो दैट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन दैट हैज टू बी इन योर माइंड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन.
So one student suggested if we choose y of length 1, then the pumping lemma will fail as p plus 1 will be even. This is also a very common mistake in when you're using the pumping lemma. Remember, when you're using the pumping lemma, you choose some string and you say, अच्छा, this string is greater than pumping length, और उसको आप x y z में तोड़ोगे, ठीक है? और फिर आप कहोगे उसका जो, हाँ, here's the मसला in जो इस स्टूडेंट ने सजेस्ट किया है. What they've done is they've suggested कि if I choose y of this length, then the pumping lemma will fail. That's the whole problem. You can never choose which y you're picking. आप ये नहीं कह सकते अच्छा मेरा एक्स वाई इस तरह बना था, मैंने स्ट्रिंग इस तरह बनाई थी, तो मेरा वाई अगर लेंथ इसका होगा तो फिर मैं पंप अप करूंगा तो मसला आ जाएगा. पंपलिंग में कह रहे हैं कि वाई किसी भी लेंथ का हो ना, किसी भी लेंथ का, आई विल फेल. अगर मैं किसी भी लेंथ का वाई ले लूं, देयर इज ऑलवेज सम स्ट्रिंग दैट विल बी आउट ऑफ द लैंग्वेज. आपने एक लेंथ ऑफ वाई के लिए दिखा लिया, यू वुड हैव टू शो इट फॉर एनी लेंथ ऑफ वाई. ठीक है? सो नाउ आई विल शो यू how you would decide, how you would go about this question. The first idea is that you're going to pick some string जिसकी लेंथ जो होगी वो पंपिंग लेंथ से ग्रेटर होगी. ठीक है? इस केस में अच्छा p और p दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो I'm going to say let's call the pumping length n here. ठीक है? n है. कन्वेंशनली हम p इस्तेमाल करते आ रहे हैं, शायद सर की क्लास में भी हम p इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन इस केस में हमारा p प्राइम रिप्रेजेंट करेगा, so I'm going to call the pumping length n. ठीक है? So we're going to take some string जिसकी लेंथ जो होगी वो n से ग्रेटर या इक्वल टू होगी. We have to pick such an n. ठीक है ना? अब n represents the pumping length in this case. So we have to pick a string that is greater than this length. हमारे strings will all be just of the form a power some number. So let's take a string a power n. ठीक है ना? Where n से थोड़ा बड़ा, let's say the pumping length is m. ठीक है? And we're taking some string of length n. तो हम जो है a पावर n ले रहे हैं. ठीक है? n जो है m से बड़ा है. So n is some number greater than m. तो ठीक है? Our pumping length was m. So any string that is greater than length m will have to be some string that is pumpable. ठीक है? तो हमने कोई string ली. यार आपको आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे अगर मैं m इस्तेमाल करूंगा इंस्टेड ऑफ p? तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आगे जाके. Would you guys prefer I use p? N is natural number, so it's automatically greater than n. N is natural numbers. हाँ, मेरे ख्याल से this is gonna get confusing. ठीक है? We'll set p as a pumping length. ठीक है ना? तो हमने कोई w लिया जिसकी लेंथ जो है पंपिंग लेंथ से बड़ी थी. ठीक है? हमारा जो w है उसकी जो लेंथ है वो पंपिंग लेंथ से बड़ा है. दैट इज इक्वल टू जो हमारा w है वो इज, आई जस्ट राइट लाइक दिस. हमने लिया w को a पावर p, where p is some prime number. अब हमें जो स्ट्रिंग लेनी होती है w, इट हैज टू बी ग्रेटर देन द पंपिंग लेंथ. ठीक है? तो हमने कहा एक स्ट्रिंग लेते हैं a पावर p, where p is some prime number that is greater than the pumping length. Now we can deconstruct w into x, y, z. x होगा, y होगा, z होगा. ठीक है? अब आपको पता है कि x, y और z तीनों बेसिकली क्या होंगे? वो a होंगे. ये भी कोई a है, ये भी कोई a है, ये भी कोई a है. एक्स वाई की लेंथ ज्यादा कितनी हो सकती है? इट हैज टू बी स्मॉलर देन, अबे यार एक तो समथिंग लेंथ किया हुआ है. होल्ड ऑन, आई एम गोना
गिव मी 1 सेकंड, सो आप लोगों की नोटेशन बेहतर हो जाए इसके लिए। हाँ ठीक है, विल डू इट लाइक दिस। लेट्स जस्ट से P इज द पंपिंग लेंथ। P को जो है पंपिंग लेंथ ही बना देते हैं, ठीक है। हमारा जो P है वो ही खुद पंपिंग लेंथ बन चुका है। सो P इज द पंपिंग लेंथ, ठीक है। नाउ वी कैन डिकंस्ट्रक्ट आवर स्ट्रिंग। ये भैया अरे, सॉरी, गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, विल गो विद द n वाला, ठीक है ना। विल से बिकॉज वी हैव टू फिक्स सम पंपिंग लेंथ, सो लेट्स से द पंपिंग लेंथ इज n, ठीक है। So the pumping length is n, and we take W to be some string a power p, where p is greater than the length n, ठीक है। p is some प्राइम नंबर है, that is greater than हमारी जो पंपिंग लेंथ थी n, so p is obviously greater than n। अब हमारी जो स्ट्रिंग है W, उसको हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे एज x y z, where x y की जो लेंथ है इट हैज टू बी स्मॉलर देन और इक्वल टू n, एट मोस्ट n होगी, है ना। So now let's write down what x, y, and z can look like. हमारा जो x होगा is going to be some number of a's. Let's call that a power j. And हमारा जो y होगा it's also going to be some number of a's. और हमारा zb is going to be some number of a's. अब हमें पता है कि x और y की जो लेंथ होगी उसको मिला के अगर लिखा जाए उसकी लेंथ एट मोस्ट n होगी. So we know that j plus k can be at most n. तो j plus k की ज्यादा लिमिट is n, ठीक है। And we know that k has to be at least 1. अब कोई बता सकता है k की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? n, बिल्कुल सही कहा। व्हाट इज k? मशहूद, हमने जो स्ट्रिंग ली थी, हमने स्ट्रिंग ली थी a पावर p। हमारी स्ट्रिंग ये है a पावर p, बिकॉज वी हैव टू टेक सम स्ट्रिंग दैट इज विद इन आवर लैंग्वेज। हमने कह दिया हमने कोई स्ट्रिंग ली है उसमें एज आते रहते हैं p दफा, और p क्या है? p is just some prime number, and what's so special about the prime number? That prime number has to be greater than the pumping length. हमारी pumping length थी n, तो हमने कहा कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं जो हम कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं जो पंपिंग लेंथ से बड़ा है, और हमारी स्ट्रिंग होगी इट्स गोना बी a पावर दैट मेनी एज, बेसिकली दैट a पावर p, उतने सारे एज आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से द पंपिंग लेंथ हैपन टू बी 9, तो हमने कहा 9 के ऊपर कोई भी प्राइम नंबर ले लो, लेट्स से 11, तो a पावर p बन जाता है 11। हम फिक्स नहीं कर रहे, लेकिन मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि p इज जस्ट सम प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर देन द पंपिंग लेंथ। फिर हमने कहा था कि हमारी जो स्ट्रिंग है w, उसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जी के फॉर्म में, where x और y का जो लेंथ होगी इज गोना बी एट मोस्ट n।
हमें पता है y का जो पार्ट है दैट हैज टू बी एटलीस्ट 1, तो 1 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से जा सकता है n हो सकता है, बिकॉज j प्लस के हैज टू बी बाउंडेड बाय n, ठीक है ना। j प्लस के यानी दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इतना जो हिस्सा है स्ट्रिंग का, इसकी लेंथ जो है ज्यादा से ज्यादा n होगी। सो हो सकता है कि पूरा का पूरा हिस्सा y में चला जाए, विच मीन्स कि जो द नंबर ऑफ एज ओवर हियर, जो द नंबर ऑफ एज हियर, सो a पावर जो k है, k इज एक्चुअली n, सो देयर n इज विद इन y itself। उस केस में आपका जो x हो जाएगा दैट्स गोना बी 0, हमारा j जो है 0 आ जाएगा। अभी तक हर कोई फॉलो कर रहा है? डू यू गाइस वांट मी टू गो ओवर इट वन मोर टाइम? कैन यू गिव अ क्विक रीकैप आफ्टर द लेंथ पार्ट बिकॉज आई स्टिल डू नॉट गेट इट? ठीक है, ओके, विल स्टार्ट ओवर। हमने अभी तक सोफा हमने किया किया है। हम दिखाना चाह रहे थे कि एनी स्ट्रिंग, हम दिखाना चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग लेते हैं, पंपिंग लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सो वी सेड वी आर गोना टेक सम स्ट्रिंग दैट इज ग्रेटर देन द पंपिंग लेंथ। पंपिंग लेंथ हमारी क्या है? n है। हमने कहा हम कोई, आपका लैग कर रहा है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, थोड़ा लैग कर रहा है। हमने कहा कि हमारी जो पंपिंग लेंथ थी, लेट्स कॉल इट m, ठीक है। नाउ वी सेड लेट्स टेक सम स्ट्रिंग दैट इज ग्रेटर देन द पंपिंग लेंथ, ठीक है। We said that string is equal to a power p. अब p क्या है? p क्या है? p is just some prime number that happens to be greater than the pumping length. अब तक तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। We just said there's some prime number that happens to be greater than the pumping length, and that is the string we're going to pump up, ठीक है। The pumping lemma states that any string that is greater than the pumping length, अगर आप पंपिंग लेंथ से बड़े हैं तो आप पंपेबल हैं, आपके अंदर कोई एक्स वाई जी है जिसके अंदर कोई रिपीटेबल पार्ट होगा, सच दैट उसको रिपीट करते जाओ तब भी आप लैंग्वेज के अंदर ही रहेंगे। तो हमने कहा चलो सही है, लेट्स टेक सम स्ट्रिंग that happens to be greater than pumping length. Let's call that string w, and w is simply a power p. So a, how many times? P number of times, where p is just some prime number greater than the pumping length. Then I said, okay, that means that w can be broken into x, y, and z, where x and y की जो length होगी that has to be at most n. अब हमें पता है the entire string is just a's. So कुछ a's x वाले पार्ट में जाएंगे, कुछ एज y वाले पार्ट में जाएंगे, और कुछ एज z वाले पार्ट में जाएंगे। हमें पता है जो एज इस पार्ट में जाएंगे दे कैन बी एट मोस्ट n एज। तो मैंने कहा a पावर j ये है, a पावर k ये है, और j प्लस k कैन बी एट मैक्स n। फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि y की मिनिमम वैल्यू, तो हमें पता है कि एटलीस्ट उसकी लेंथ 1 होगी, तो हमें पता है y के अंदर कम से कम एक a तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा y में कितने एज हो सकते हैं? और एक बंदे ने सही जवाब दिया कि देयर कैन बी n एज, ज्यादा से ज्यादा y के अंदर सारे के सारे एज इसमें चला गया। बट दैट डजंट मीन कि एक्स वाई की लेंथ जो है नेसेसरीली n ही है, दैट डजंट मीन एक्स वाई हैज टू बी ऑफ लेंथ n। आई एम जस्ट सेइंग एट मैक्स इज गोना बी ऑफ लेंथ n। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ बिटवीन within the pumping length, ठीक है। It can be length 1 2 3 4 5 all the way up till n, it's going to be bounded by the pumping length. Now we're going to see that no matter what string we take, no matter what breaking we take, I can always find a pumpable string that is not of prime length. And how are we going to do that? We said कि अच्छा अब हमारा x a power j है, हमारा y जो है a power k, and z जितने भी बच जाएंगे ना, उसमें हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी? हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी p, ठीक है ना, where p was just some prime number। तो मैंने कहा जितने भी बच जाएंगे ना एज उसमें डाल दो। ये समझ आ रहा है सबको? Did everyone get this step? Does anyone want to repeat कि अभी मैंने क्या किया है? मैंने कहा कि अच्छा हम अभी तक तो हमारी कोई स्ट्रिंग थी, इस तरह लिखी थी मैंने, x में कुछ एज हैं, y में कुछ एज हैं, z में कुछ एज हैं। अब मैंने क्या है उसको थोड़ा डिफरेंटली लिख दिया। मैंने कहा x में कुछ एज हैं, y में कुछ एज हैं, और बकिया एज मैं z में डाल रहा हूँ। इट्स द सेम थिंग, आई जस्ट रिटन इट स्लाइटली डिफरेंटली। मैंने वहां पे जो l लिखा हुआ था, और अब यहाँ पे लिख दिया है p माइनस j माइनस k, बिकॉज w वॉज वॉट, w वॉज सिंपली a पावर p। तो मैंने कहा जितनी भी एज बच रहे हैं ना,
उनको डाल दो जी में, ठीक है? डज एवरीवन फॉलो इट नाउ, या कोई चाहते हैं मैं इसको दोबारा रिपीट करूं इसको? ओके, नो वन से एनीथिंग, आई एम गोइंग टू बी मूविंग ऑन, ठीक है? सही है। सो नाउ वी सेट, अच्छा, सो हमारा जो अभी तक स्ट्रिंग थी वो एक्स वाई जी थी। अगर एक्स वाई जी एल के अंदर है तो फिर हमारी एक्स वाई पावर आई जेड भी एल के अंदर होगी, where दिस इज द पम्प्ड अप स्ट्रिंग, है ना? हमने वाई को वापस 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 करते रहे, तो वो भी पम्प्ड अप स्ट्रिंग भी एल के अंदर होगी। दैट इज द प्रोपोजिशन ऑफ द पंपिंग लेमा। इफ आई वाज रेगुलर देन आई वुड हैव टू बी विद इन एल, एंड इफ दैट इज विद इन एल, देन यू आर बेसिकली सेइंग कि यार मैं कोई भी वाई ले लूं ना, और उसको मैं कितनी भी दफा उसको पंप इन कर लूं, I will still be a string of prime length. And I will show you that I can always construct a string that is not of prime length. All I have to do is I have to show कि हमारा, अच्छा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? जब हमारी स्ट्रिंग पंप अप हो गई तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई? एक्स वाई आई और फिर जी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया आई। तो अगर y जो है a पावर k था, नाउ a पावर k विल बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, तो a पावर k, a पावर k, a पावर k, और काफी दफा पंप हो जाएगा। सो लेट्स, यहाँ पे तो मैंने 3 दफा दिखाया है, इट कैन बी पम्प्ड अप आई नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? सो अगर इसको पंप अप कर दिया आई नंबर ऑफ टाइम्स, देन हाउ मेनी एज विल आई हैव? आई नो दैट दिस पार्ट रिमेन्स द सेम, so I'm going to just write this as is, a power j, and I know that this part remains the same, so I'm going to write this as well. लेकिन हमारी जो ये वाली पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने पंप अप कर दिया आई टाइम्स, हाँ, रिपीट 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 करते रहे। तो हमारे y, जब y 1 था तो इस वाज a पावर k, तो नाउ दे विल बी अ बंच ऑफ a पावर k's, एंड हाउ मेनी ऑफ देम? आई मेनी ऑफ देम। तो हमारे a कितने आ जाएंगे यहाँ पे? इट सिंपली बी a i मल्टीप्लाइड बाय k। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? Did everyone get what I did here? Did someone want me to repeat? ठीक है, I'm gonna move on. So now हमारी string जो होगी, now let's simplify this number. So how many a's do we have? Well, we have a power j plus ik plus p minus j minus k number of a's after the pumping up. इसका मतलब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। let's just look at this number, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसको मैं इसके साथ करीब ले आता हूँ। सो ए कितने हो गए? आई के माइनस के प्लस पी, ठीक है? नाउ ऑल आई हैव टू डू इज नाउ सिंप्लीफाई दिस। तो ये हो जाएगा a पावर p प्लस k कॉमन ले लिया, 1, सॉरी i माइनस 1। So this is how many a's I have now. Now all I have to do is I have to make this into a non-prime number. And how do I do that? I just have to make this a multiple of something. मैंने क्या किया? मैंने सिंपली इसको जो रख दिया, I made I equal to p plus 1। जब i p plus 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? p। तो यहाँ पे आ जाएगा p। तो p इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ गया? a पावर p प्लस k पावर p, k टाइम्स p। आपने k कॉमन, आप p कॉमन ले लिया, आपका आंसर आ गया। अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है तो हम गोना रिस्टार्ट, एक सेकंड।